खुशनुमाई से मुताल्लिक दीगर जुजियात और तौसी मंसूबे की खिदमात को मुकम्मल करना था। जद्दे के करीब एक फैक्ट्री में खास तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल मशीनें नस्ब की गई, जिनकी बदौलत मुख्तलिफ आराइशी अशिया की तैयारी के लिए 1500 टन पीतल की सफाई में मदद मिली। माहिर कारीगरों और मशीनों की मदद से पैदावार में तेजी से इजाफा मुमकिन बनाया गया, जिसके नतीजे में हर रोज 1490 आराइशी अशिया और 12 सुतूनों की असास तैयार होने लगी। बाज अक़साम के आराइशी ग्रिल्स भी तैयार किए गए और इन पर हाथ से पॉलिश की गई। सुतूनों के 2488 हिस्से 3 मुख्तलिफ अक़साम में दरकार थे। सिर्फ एक साल के कलील अरसे में 4 मुख्तलिफ अक़साम में बरक़ी क़ुमक़ुमों के लिए 11600 आराइशी और खुशनुमा लाइटिंग फिक्सचर भी तामीराती मकाम पर भेजे गए। गुल अज़ रुख़ता मुख़्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख़ता शीरी सुख़नीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख़ता शीरी सुख़नीरा 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 सुख़नीरा। जद्दे में ज्यादातर लकड़ी की आराइशी चीजें भी तैयार की गईं। इस मकसद के लिए आला किस्म की टीक की लकड़ी इस्तेमाल की गई। हर के लबे लाल तुरा फैक्ट्री में लकड़ी के हर किस्म के काम के लिए आला किस्म की मशीनें मौजूद थीं। चुनाचे जरूरत के हजारों टुकड़ों को तैयार किया गया। इन पेचीदा कामों के लिए माहिर कारीगर मौजूद थे। वो मशीनों के साथ साथ दस्तकारी भी करते रहे। गुल अज़ रुख़ता मुख़्ता नाजुक बदनीरा बदनीरा बदनीरा। मस्जिद के अंदरूनी दरवाजों पर खूबसूरत नक्शो निगार कंदा किए गए। हर दरवाजे को टीक के 1600 टुकड़ों की सूरत में तराशना पड़ा। टीक के टुकड़ों को बड़ी एहतियात के साथ बुनियादी शक्ल दी गई और डिजाइन के मुताबिक इन्हें जोड़ दिया गया। खिड़कियों के मुख्तलिफ अक़साम के फ्रेम भी टीक से बनाए गए। तैयारी के मराहिल से गुजरने के बाद लकड़ी की हर शय पर वार्निश की गई। इन्हें खुश्क किया गया और इनमें ठोस पीतल डिजाइन के मुताबिक नस्ब किया गया। गुल अज़ रुख़ता मुख़्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख़्ता शीरी सुख़नीरा 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 सुख़नीरा। दर्श्क़ तो दंदान शिकस्त बउल्फ़त
در عشق تو دندان شکست است با الفت تو جام رسانید ویسے قرار رنگین شیشوں سے تیار کی گئی ستارے کی شکل کی کھڑکیاں بھی جدہ کی ایک ورک شاپ میں بنائی گئی. تو جام رسانید ویسے قرنیرا قرنیرا قرنیرا. اسلامی فن تعمیر کی روایتی قسم کے رنگین شیشوں کی 240 کھڑکیاں تیار کی گئیں. یہ کام بے حد احتیاط اور ضبط و تحمل کا متقاضی تھا. 3 افراد نے 3 دن شب و روز محنت کے بعد ایک کھڑکی تیار کی. بلبل زتو آموختا شیری سخنیرا سخنیرا. براہیمیا میں عمدہ قسم کا شیشہ ہاتھ سے تیار کیا گیا تاکہ مسجد کے فانوسوں کے لیے بے حد نفیس قندیلیں تیار کی جا سکیں. سارا رسانید سلام از جامعہ بیتارا رسان. ان قندیلوں کو فانوس کے دیگر اجزاء کے ہمراہ مدینہ منورہ لایا گیا اور انہیں ایک ساتھ جوڑ دیا گیا. بر درگاہ دربار رسول مدنی رام مدنی رام مدنی رام مدنی رام. بر درگاہ دربار رسول مدنی رام مدنی رام مدنی رام مدنی رام. گل از رختا مختا 1412 ہجری کے اختتام تک 68 فانوس کامیابی کے ساتھ نصب کر دیے گئے. ان کے ڈیزائن کی تیاری روایتی اسلامی قندیلوں سے متاثر ہو کر کی گئی تھی جن کے اندرونی حصوں کی دیگر تمام اشیاء سے مطابقت پیدا کی گئی. میں بہک سکوں یہ مجال کیا. برطانیہ کے انتہائی شاندار اور اعلیٰ قسم کے سیرامکس تیار کرنے والی ایک کمپنی نے مسجد کے لیے بہترین سیرامک ٹائل تیار کیے. ٹائل روایتی اسلامی طرز پر بنائے گئے جنہیں شاہ فہد دروازے کے اوپر لگائے گئے 7 گنبدوں کے اندر اور باہر نصب کیا گیا. میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے من. مسجد کے صدر دروازوں کی تیاری کے لیے ٹیک کی لکڑی اسپین کی بندرگاہ بارسلونا تک پہنچائی گئی. دنیا بھر میں لکڑی کے کام کی سب سے زیادہ ضرورت اس منصوبے کے لیے پڑی. ان میں سے ہر شتیر درخت کے نصف تنے کا تھا. لیزر سے رہنمائی حاصل کرنے والی مشینوں نے پلک جھپکتے میں لکڑی کو حسب ضرورت کاٹ دیا. غیر معمولی گہرے جوڑوں کی کھدائی کے لیے خصوصی چین تیار کی گئی. دروازوں کے تمام ٹکڑوں کو اسکریوز اور گلو کے بغیر ایک جگہ رکھ کر روانہ کر دیا گیا. مقصد یہ تھا کہ انہیں سفر میں کوئی نقصان نہ ہو اور تعمیراتی مقام تک پہنچنے کے بعد ان کو مطلوبہ طور پر جوڑ لیا جائے. جو تمہاری جالی سے فرانس کی ایک فاؤنڈری نے دروازوں پر پیتل کے نقش و نگار بنانے کا کام انجام پایا. اس کے ڈیزائن روایتی عرب طرز کے تھے، تاہم دروازے کے مرکزی ٹکڑے کے ڈیزائن بنانے اور اس کی تیاری میں کئی مہینے صرف ہوئے. وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور. ماہر کاریگروں نے اپنا کام ماہر سونار کے معیار کی طرح بڑی خوبصورتی سے انجام دیا. ڈیزائنوں کی تیاری کے بعد آخری مرحلے میں ان پر 23 قیرات سونے کا پانی چڑھایا گیا. نہ میرے سوا کوئی اور ہے میری ان کی سانچوں میں ڈھلائی میں معمولی سا نقص بھی سونے کے پانی کو ضرورت سے زائد کر سکتا تھا.
चुनाचे रवानगी से कबल हर हिस्से की पूरी एहतियात के साथ जांच पड़ताल की गई और फिर पॉलिश कर दी गई। चलो मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों। दरवाजों की डिजाइन में मामूली जुजियात तक से भी सरफे नजर नहीं किया गया। चलो तो बना के सर को कदम चलो। सदर दरवाजों की तैयारी के पेचीदा मराहिल ने लकड़ी को हतमी तौर पर जोड़ने के अमल को खासा दुश्वार बना दिया था, क्योंकि एक दरवाजे में सैकड़ों टुकड़ों को जोड़ना आसान काम नहीं था। चलो कि ये रास्ता। हर दरवाजे का वजन 2.5 टन है। ताहम मुकम्मल होने के बाद इसे इतने मुतवाजिन अंदाज से चौखटों में लगाया गया कि इसे एक उंगली से बंद किया और खोला जा सकता है। सोने की पत्तियों वाले शीशे पंखों की कतार में नस्ब करने के बाद फिर एक बार इनकी जांच पड़ताल की गई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मियारी सामान और आला मियार की हुनरमंदी ने मिलकर दाखिले के चकाचौंध कर देने वाले रास्ते बनाए। शहर से बाहर पानी को ठंडा रखने के प्लांट से मदीना मुनव्वरा तक 7 किलोमीटर तवील सुरंग तामीर की गई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी इमारत से मुल्हिक दुनिया का सबसे बड़ा एयर कूल कंडेंसर नस्ब है। पानी इमारत में कायम यकबस्ता चिलिंग यूनिट के जरिए गर्दिश करता है। कोई और था। शहर से बाहर ठंडे पानी के प्लांट से 1 मिनट में 17,000 गैलन पानी पाइपलाइन के जरिए इमारत के तहखाने में पहुंचता है। ये गुमान था कई साल से। सुरंग दूसरे रिंग रोड और शहर के मरकजी हिस्से की जानिब वादी अकीब के नीचे से गुजरती है। इसके बाद बनाका अंडरपास के नीचे कार पार्किंग और मस्जिद के तहखाने का रुख करती है। इस सफर में 1.5 घंटा सर्फ होता है। साल से ये गुमान था। ठंडा पानी देव हैकल एयर हैंडलिंग यूनिटों से गुजरता है। इन यूनिटों से गुजरने वाली हवा ठंडे पानी से सर्द हो जाती है। कई रोज से मेरे दिल से गुंबदे सब्ज़ का। ठंडी हवा इंसुलेटेड डक्टिंग के नेटवर्क से गुजरती है, जिसे मस्जिद में मुख्तलिफ मकामात पर सुतूनों की असास में बनी हुई डक्ट्स के जरिए तकसीम कर दिया जाता है। एयर कंडीशनिंग का निजाम सरकते गुंबदों से हम आहंग किया गया है। इन गुंबदों को मस्जिद के दर्जे हरारत को एक सतह पर रखने की गरज से खोला और बंद किया जा सकता है। वो हबीब रब करीम है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली सऊदी तौसी के जमाने के सहन इतने बड़े थे कि इन्हें सरकते गुंबदों से ढांकना मुश्किल था। इसका एक हल तलाश किया जाना था ताकि नमाजियों को शदीद गर्मी की तपिश से बचाया जा सके। इस मकसद को हर सहन में मुकम्मल तौर पर मैकेनाइज्ड 6 छतरियां नस्ब करके हासिल किया गया। इतने बड़े पैमाने पर इस किस्म की छतरियों का इस्तेमाल कभी न हुआ था। फिक्र है मेरी आपकी, उन्हें चाहता कोई और है, उन्हें फिक्र है। छतरियों के सुतून